ऑल राइट जी, सो दिस इज मई जून 2025, लास्ट ईयर का जो पेपर था मई जून का, ठीक है, हमारा वेरिएंट आर वेरिएंट 22। Can South Africa escape from its economic difficulties? South Africa has serious economic difficulties despite its vast natural resources. The main economic indicators show a country in trouble. As figure 1.1 shows, despite the overall fall over the last year, unemployment remains high. Unemployment remains high. जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो। Despite its vast natural resources, the main indicators show अच्छा, despite a fall in the over last, unemployment remains high. Unemployment याद रखनी है ज्यादा हो रही है. It is amongst the highest in the world, particularly for young people, and this has led to one of the highest and most persistent levels of income inequality in the world. Income inequality भी ज्यादा है भाई. वो तो जीनी कोफिशिएंट जब हमने किया था याद है, जीनी कोफिशिएंट में हाईएस्ट जीनी कोफिशिएंट, हाईएस्ट इनकम डिस्पैरिटी साउथ अफ्रीका की है 0.67. तो इनकम इनइक्वालिटी भी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, हालात खराब है. अमंग द वर्स्ट इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका के अंदर सबसे घटिया उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, सबसे कम है. टुगेदर विद हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस दैट द कंट्री has had a fiscal deficit for more than 4% of GDP in recent years. Despite falls in the value of South African currency rand, the current account of the balance of payment projected to move from a deficit of 2.3% to a GDP to deteriorate to 2.5% of GDP in 2024. ले जी, सब काम खराब है. फिस्कल डेफिसिट भी है, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ठीक है, और करेंसी की वैल्यू भी गिर रही है, डेप्रिसिएशन भी हो रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट भी है, फिस्कल बजट डेफिसिट भी है, ठीक है, सब कुछ ही खराब है. अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इनकम इनइक्वालिटी भी है. ठीक क्या है फिर? इन मार्च 2023 statement, IMF recommended that South African government should adopt the following policies: improvements in infrastructure, particularly electricity supplies and transport links. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे. दिस शुड बी अचीव्ड बाय प्रमोटिंग मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. encourage more competition within South Africa and free trade with neighboring countries by reducing protectionism. Closer links with African continental free trade should be established to tackle a very high rates of unemployment and income inequality. A range of policies has been suggested. These include setting minimum national wage ताकि लोग वापस आए at an appropriate rate to encourage more people back into the workforce. मिनिमम वेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे होंगे ताकि लोग काम आए, लोग ज्यादा कर रहे होंगे ताकि लोग काम करना आए. This should be done alongside policies to strengthen employment protection. In addition, other policies improving levels of education and training, better support for transition from school to work. Finally, policies to promote entrepreneurship. However, will these policies help South Africa in its economic difficulties? Identify the overall change in unemployment rate. किस पे फोकस करना है? ओवरऑल चेंज, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिटवीन जनवरी 2020 एंड अक्टूबर 2022. वालेकुम सलाम. ये कुंडी लगा दो यार, दरवाजा बंद कर जी. जल्दी करो, जल्दी करो, बंद करो, बंद करो, इसको बाहर करो, बाहर बाहर. चलें जी. ओवरऑल चेंज अनएम्प्लॉयमेंट टाइमलाइन दी हुई थी कोई? 2020 जनवरी एंड अक्टूबर 2022, 2020 एंड अक्टूबर 2022. ओवरऑल चेंज क्या है भाई? ओवरऑल चेंज क्या है? इधर बैठ जाए, उधर बैठ. हाँ जी, ओवरऑल ट्रेंड क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीजिंग है. Unemployment rate increased. The overall trend was increasing. What else? By almost
ये ऑलरेडी परसेंटेज है, एग्जैक्ट निकाल लो कितना बन रहा है, 2.6% का इंक्रीज आया जी। नहीं, बात समझ आई? देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो। ये 1 मार्क था ना, 2 मार्क्स तो नहीं था। दिस इज अ 1 मार्क, बस ओवरऑल चेंज बताएं, 2.6% से बढ़ गया, इंक्रीज का नंबर होगा, मार्क्स होंगे। इफ इट वाज 2 मार्क्स तो फिर आप ओवरऑल ट्रेंड में एनॉमली भी बताते कि ये इस इन दिनों फिर गिरा, पहले बढ़ा, इतना बड़ा इस साल में गिरा, ठीक है। इधर ये जरूरत होपफुली नहीं है। इंक्रीज रोज एक नंबर आ गया, गेम ओवर। बात समझ आई? Answers that identify a number of changes between these dates, only the overall change between these dates. सिर्फ ओवरऑल चेंज, जब उसने बोला है ओवरऑल चेंज तो ओवरऑल बताएं बढ़ गया। Please ignore any correct or incorrect calculation of figures as a result of calculation is not required by the question. The mark should only be awarded if the candidate identifies unemployment rate has. तो वो हमने 2.6 भी निकाला, उसके नंबर नहीं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख दें, 2.6 लिख दें, 1 मार्कर के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल चेंज पूछा है, ओवरऑल चेंज ये था, उसने कहा इग्नोर करें, नंबर काट तो नहीं रहा, आप लिखते हैं हमने अच्छा किया निकाल के बता दिए 2.6% से बढ़ गया, ठीक है। ठीक है। बस इंक्रीज का है, बढ़ गया, रोज इंक्रीज, इसके नंबर है। Compare the trend in the unemployment rate in South Africa between January 2020 and January 2022 with that between January 2022 and October 2022. जनवरी 2022 किधर है भाई, जनवरी 2022 यहां तक, इसको और ये इस टाइम को और इस टाइम को, यही कह रहा है ना, जैन 2020, जैन 2022, फिर 2022 से अक्टूबर 2022। हाँ जी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी ये है कि ये ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसको मैं ब्लू में लिख रहा हूं, तो ओवरऑल क्या है, इंक्रीज हुआ है, जबकि ये ओवरऑल इस टाइम पीरियड में डिक्रीज हुआ है। आई बात समझ में? ये पहला डिफरेंस आ गया। एक और, 1 मार्कर, ये भी 1, ये भी 1 मार्कर है, गेम ओवर। इंक्रीज डिक्रीज आ जाना चाहिए नंबर। It increased in the first period, then decreased in the first. The only comparison that should be accepted is a comparison of overall trend. ठीक है, any reference to other dates is irrelevant, should not be rewarded. Use of accurate figures must be accompanied by references to an increase followed by a fall. खाली फिगर्स दे दिए, इंक्रीज और गिरा, पहले बड़ा बाद में गिरा, ये नहीं बोला, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डेटा जेब में, ये जेब है। बट सर वो तो कॉमन सेंस नहीं है कि जब आप नंबर्स लिख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है? बस कॉमन सेंस गोरे में नहीं है, उसने लिख दिया आपके सामने। जब वो कह रहा है पर्टिकुलरली एग्जामिनर के साथ पंगे ना करें, एग्जामिनर ने जब कह दिए तो कह दिए। वो कहता है एक्यूरेट फिगर्स हैं, मस्ट बी अकम्पनीड बाय रेफरेंस टू इंक्रीज एंड फॉल। इफ यू डोंट राइट द वर्ड इंक्रीज हुआ और फिर गिरा, नंबर नहीं मिलेगा, एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म। मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है, समझ रहे? तो इसलिए एग्जामिनर से पंगे नहीं लेने। ऑब्वियसली कॉमन सेंस तो है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। Identify one possible impact on firms in South Africa and one possible impact, possible means data में, case study में नहीं है, impact on the government of South Africa of such a high rate of unemployment. सर, गवर्नमेंट को ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। यस, गवर्नमेंट का बजट एक ही बड़ा सा करते हैं, पहले तो फर्म्स के ऊपर आ जाए, हो सकता है वेजेस कम हो जाए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, एग्जिस्टिंग लोग ज्यादा वेजेस ना मांगे, ठीक है, और ज्यादा वैरायटी टू चूज फ्रॉम।
वैरायटी एंड स्किल्स टू चूज फ्रॉम। तो उनका Sir, सीन थोड़ा सा व्हाट साउथ अफ्रीका की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल गिर जाएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। what does it have to do with this question? It has to do nothing with this question. वो पूछ रहे फर्म्स का क्या इंपैक्ट आएगा इस चीज का। पहला, फर्म्स को क्या इंपैक्ट आएगा कि एक तो अगर वो बंदा रखने और एम्प्लॉय करना चाहेंगे, उनके पास वैरायटी बहुत है चूज करने के लिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग वर्कर्स वोंट आस्क फॉर एन इंक्रीज इन वेजेस। एग्जिस्टिंग वर्कर्स हायर वेजेस नहीं डिमांड करेंगे। एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म। प्रोडक्टिविटी गिर गई नहीं गिरी, प्रोडक्टिविटी अनएम्प्लॉयमेंट से जरूरी नहीं है गिरे, ठीक है। वो तो अनएम्प्लॉयड जो हैं उनके लिए मसला है, और इनके लिए एक ही करेंगे कि ट्रांसफर पेमेंट, टैक्स रेवेन्यू कम। दोनों एंगल से देख लेते हैं, वैसे तो यही काफी है। टैक्स रेवेन्यू कम, ट्रांसफर पेमेंट्स के ऊपर खासतौर पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा, जिससे चांसेस हैं बजट डेफिसिट के। वो गवर्नमेंट को मसला है, वो तो इकोनॉमी को मसला है। There's a difference between government and फिर आप लिखेंगे कि मैक्रो, लेकिन क्यों करना है जब एक चीज सामने है, ठीक है। जब एक चीज सामने ऑब्वियस है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक चीज है खर्चा, पैसे कम खर्चा ज्यादा, तो फिर पंगे क्यों लेंगे। अच्छा, देखने में मुश्किल लग रही थी, है बहुत आसान फिलहाल अभी तक। may find it easier cheaper to recruit labor, pay lower wages, may suffer weaker demand of their products। ये भी था कि डिमांड भी तो गिर रही है, कमा नहीं रहे लोग। रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू, हायर वेलफेयर पेमेंट्स, दोनों में से बस एक भी लिख देते काम चल जाता। पर इम्पैक्ट ऑन फर्म्स एंड एक एक नंबर दोनों का आ जाए। आसान, सिंपल, ज्यादा डोंट स्ट्रेस। आप लोग समझ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिखना है। 1 मार्कर 2 मार्कर में जवाब मुंह पे मारे और आगे चले। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। ये कल आपको नहीं पता था क्या सीन है, अब आप मुझे बताएं क्या सीन है। आपने अच्छा किया पूछ लिया। 6 मार्कर, आप मुझे बताएं कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है 6 मार्कर की। 4+2, 4 क्या है, एनालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव्स, एंड 2 किसके, जवाब मिल गया। ये सीन है, बाकी अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या सीन। इसका क्या सीन है 4 मार्कर का, 3+1। कंसिडर, कभी कभार 2+2 भी होता है, कभी कभार 2+2 भी होता है, वो आपने खुद जज कर लेना कि दूसरी साइड कितनी है। तो आप इस तरह अटेम्प्ट करें इसको, 3+2 के लिए हमेशा अटेम्प्ट करें। किधर आए, क्लास तो खत्म होने वाली है। Consider whether continued falls in the value of South African rand may lead to a reduction in the current account deficit of the balance of payment। जी अभी कोई बात नहीं, ये वैसे तो पढ़ा हुआ है ना। सवाल पढ़े, सवाल पढ़े, पहले बोलेंगे यस। बताएं, अगर रैंड डेप्रिशिएट कर गया, उनकी करेंसी का नाम, एक्सपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी, इंपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी, इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हो जाएगा। ये आपके, मेरा ख्याल है 3 नंबर आपको लेके देगा। दिस इज इट। समझा लेंगे ये, यस आ रहे हैं इस पर, ये 3 नंबर आ गए। नहीं होगा भाई ऐसा, नो। इफ पीडी of exports and imports is inelastic, जी डिपेंड्स ऑन पीडी, फिर एक 0 नंबर मिलेगा, समझाना पड़ेगा कैसे। if pd of x and m is inelastic, then एक्सपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी
कम से बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगा। डू वी गेट इट? ये 3 मार्क्स फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस। कैसा? कोई जरूरत नहीं, काफी है। हाँ होना चाहिए, लेकिन वो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, वो बहुत लंबा चौड़ा आएगा। Continued falls in rand will make exports relatively cheaper, एक नंबर, imports relatively more expensive. Chain of analysis, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे ना, will improve, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, तो यू आर लूजिंग 2 मार्क्स। देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं चेन ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। पहले Sir, if we write that, would that be considered as assertion जब तक आपने इसको justify ना किया? व्हाट? आई डिडंट गेट इट, Sir, दोबारा बोले। Sir, जब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दोगे, would that be considered as assertion जब तक आप उसको further justify नहीं करोगे? एग्जैक्टली With more एग्जैक्टली, points. देखे ना, आप अगर एक स्किप कर गए, वो भी असर्शन है। आपने कह दिया डिप्रिसिएशन हो जाएगी, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, तो उस पे मार्क्स मिलते ही नहीं है if you अब मिल just जाएंगे, write a point. लेकिन वो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे जो ये लिखे में, Okay. ये Alright. 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। Right. ठीक है, तो 2 मार्क्स आपके वैसे ही निकल गए। दिस शुड लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड, सेल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, और अ फॉल इन डिमांड या सेल्स ऑफ इंपोर्ट्स, or an increase in the value of net exports, and therefore a fall in the current account of the deficit. ये तो अच्छा ही कोई और होगा, समझ आई? करंट अकाउंट डेफिसिट पे लिंक करना है, अगर आप गए नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट पे तो ये नहीं होगा। सुने, हाँ उस केस में बेशक एक्सपोर्ट प्राइसेस गिर रही हैं, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाएगा ना। हाँ गिरेंगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन कम से। दिस वाज 10, this was 10, this is 100, the prices fall by let's suppose 50%, प्राइस होगी 5, क्वांटिटी बढ़ी ओनली बाय 10%, कितनी होगी? नहीं नहीं, डिमांड है तो कितना हो जाएगा, वॉट एवर दिस इज, कितना ही है, बस उससे ज्यादा ही है। समझ आई बात? रिजर्व 1 mark for a valid example, the importance of PD and any other valid. मार्शल अंडर कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, मार्शल अंडर कंडीशन इज द नेम ऑफ दिस पीडी थिंग, ये A2 में, ठीक है, लेकिन पीडी हम बताते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो MLC अगर आप देखें, या आप 2023 से पिछले एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो अगर मार्शल अंडर कंडीशन या जे कर्व नाम की चीज सुनते हैं तो जस्ट इग्नोर इट। वैसे मार्शल अंडर कंडीशन इसको कहते हैं कि दोनों का सम 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब सो इजी, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं। समझ आई बात की? एक सेकेंड, इधर देखना कहीं लिखा होगा 48 आउट ऑफ 60। सर्च नहीं कर सकते, इधर देखना, मुझे तो पता नहीं, नजर भी नहीं आ रहा। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि सैंपल P2 41 नहीं, ये कितने नंबर है? 3 और 0 मिला है, ये अच्छा हमें मिल गया। इफ यू कुड नॉट यूज द फोन एंड पुट इट अवे, दिस इज नॉट अवे, पुट द फोन अवे, अवे, यस। हाँ जी, इसको इवैल्यूएशन का नंबर नहीं मिला,
आए पढ़ते हैं इसने ऐसा क्या किया है इस बच्चे ने। द करंट, ये मेरे एक स्टूडेंट का पिछले साल का है, वो अभी 2 में। द करंट अकाउंट डेफिसिट अकर्स व्हेन द, ये क्या है, when the economy, अच्छा कुछ नहीं, when the economy are more Outflow. than outflows, when the economy are more than the outflows are more than the inflows, means that the economy is earning less, कोई नंबर नहीं, ठीक है। Continued falls in the rand will mean that the currency of South Africa is depreciating as it is being demanded less and supplied more। इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, बस सिंपल कह देती डेप्रिसिएशन, लेकिन चलें। This will result in the exports of South Africa to become cheaper। ये आया टिक, बताया कि सस्ती हो गई, and the imports to become more, 2 नंबर आ गए यहीं पे सिर्फ ये बताने के। This may help to reduce the deficit in the current account as the cheaper currency will become more affordable to foreign consumers, increasing the aggregate demand। This will therefore lead to more exports। इसकी भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बस चीपर हो गई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ये एक और नंबर, more people will be willing and able to buy। Additionally, the expensive imports will discourage domestic consumption, consumers from buying them as they become less affordable, leads to less imports in the country। लें जी, 3 में से 3 ठीक हो गया। प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट बताया और उसकी ओवरऑल रेवेन्यू पे बताया। However, अब इसमें इसको 0 क्यों मिले? Continued falls in the value of rand may not lead to reduction in the deficit if the demand for imports is, ये तो ठीक लिखा है, meaning that it will continue to be demanded despite a change in price। This is also less likely to, as the deficit on the current account is expected to go। अच्छा ये तो चलें, इसने ये ऐसे ही लिख दिया ना ये वाला पार्ट, सर इसमें मार्क करना तो नहीं चाहिए। यही तो गेम है। तब प्राइस इन इलास्टिक नहीं लिखा हुआ, प्राइस इन इलास्टिक नहीं लिखा हुआ और बताया नहीं है क्लियरली कि क्या चक्कर है। चेंज इन बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया इसने, हालांकि इसका एग्जामिनर, इसके -4 हुए हैं रॉ मार्क्स में से एडजस्टेड मार्क्स, तो इसका एग्जामिनर लीनियंट था। इसके वैसे 48 है आउट ऑफ 60 और इसको मिले 44 है आउट ऑफ 60। ये यू बनता है, ए बनता है और क्या बनता है जी, बात समझ आई? देख रहे हैं एग्जामिनर कितना स्ट्रिक्ट है, कितना स्पेसिफिक होना तो पड़ेगा। फिर सर यहाँ पे क्या लिखे? यहां पर ये What लिखती to write? कि continued falls may not lead to a reduction in the deficit if the demand for imports and exports is inelastic, Inelastic. meaning that a percentage change in price of exports would have led to a relatively smaller increase in quantity, due to which the overall export revenue would have fallen. Hence, the balance of trade the balance of trade deficit might not improve। गेम समझ आई है? लिख के भी उसने Yes. नंबर नहीं दिए, तो ये मैं नहीं कर रहा, ये एग्जामिनर कर रहा है। Assess the extent to which closer membership of whatever this is may help। ये क्या है? ट्रेडिंग ब्लॉक्स। वैसे उसने ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्यों दिए? ट्रेडिंग ब्लॉक्स वैसे A2 में होता है, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, इसने लिखा हुआ है किधर गया ये, closer links with the African continental free trade area should be established। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिडक्शन, प्रोटेक्शनिज्म कम करें और फ्री ट्रेड ज्यादा करें। अच्छा, assess the extent to which closer membership of South Africa of this achieve growth needed to escape from its economic difficulties। हाँ जी, सादे अल्फाज में फ्री ट्रेड अगर करता है, ट्रेड बैरियर्स अपने कंट्रीज के साथ फ्री कर देता है, कम कर देता है, तो पहले क्या करेंगे? उससे अफ्रीका का ओवरऑल सीन ऑन हो जाएगा और फिर दूसरी साइड क्या है? ओवरऑल सीन ऑफ हो जाएगा और फिर एंड पे कंक्लूजन। ऐसा ही है, ठीक है। जिसको ये AFCTFA जो है फ्री ट्रेड एरिया का नहीं भी पता, वो ऊपर से पढ़ के समझ लेता है कि क्या है। वैसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो है वो चैप्टर उधर का है,
A2 का है। आ जाए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। जब वो बाकी कंट्रीज के सर साथ इसकी मार्क जी सर इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि 4+2। 4+2 यस, दोनों Okay, की 4+2 4+2 you have to attempt it like just like a 12 marker. That was 8+4, this is 4+2, उसका छोटा भाई है 12 मार्कर का। सर दोनों की लेंथ सेम होगी आंसर्स की, या ये थोड़ा कम लिखना है? आप बताएं आपको क्या अकल क्या कह रही है कि ये 6 नंबर है वो 12 नंबर है, उस पर 24 मिनट लग रहे हैं, तो इस पे कितने लगने चाहिए? 12 मिनट सर लगाओ 12। इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, वैसे तो ये इतना कोई फायदा नहीं है, 12 मिनट करें जरा। 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20 करें। 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 20। सर 8 80। नंबर समझ रहे? और करें जरा 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू, नहीं हाँ 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 40, 12, 12 12 8 समझ रहे? 12 12 8 कितने हो गए, कितने मिनट हो गए? 32 मिनट। समझ रहे? इस पे आपको लगाने चाहिए, तो इसका मतलब इनको जल्दी जल्दी करें और फिर वही बात, इसको 2 मिनट के अंदर अंदर पढ़ें। ठीक है, ये लॉजिक ये कहती है, अगर बिल्कुल आप मैथ्स करें तो ये मैथ्स है। अब करूं, देखूंगा तो बताऊंगा। हाँ जी बताएं। क्लोजर विच एक्सटेंट टू विच, क्लोजर एक्सटेंट इवैल्यूएशन में लाएंगे। मेंबर ऑफ दिस टू अचीव ग्रोथ नीडेड टू एस्केप फ्रॉम इट्स। क्या फायदा होगा जी उससे? इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्या थी? बजट डेफिसिट, डिप्रिसिएशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, इनकम इनइक्वालिटी भी ज्यादा। उसको लिंक करना है हर चीज को। सबसे पहली चीज वैरायटी, चॉइस, और ये कह रहे हो तुम, चलो ये तो बढ़ जाएगी, उससे ओवरऑल ये है, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म खत्म हो जाएगा तो इंपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी, फ्री इंपोर्ट्स आ रही हैं, इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई हो सकता है बढ़ जाए, फर्म्स नई खुलें, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, जिससे आपका ओवरऑल इनकम बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसकी वजह से कम हो जाए। ये एक सॉलिड पॉइंट, मजा आया, इसका नहीं मजा आया? Because you are joining a free trade agreement, so they are also signing a free trade agreement with you, no? So there are no tariffs and quotas on their products. If volume of exports increases, फ्री ट्रेड की वजह से आपकी चीजें उनको सस्ती लग रही हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ गया तो बजट आपका ट्रेड डेफिसिट हो सकता है कम हो जाए। ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो जाएगा तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा, इनकम पे भी फर्क पड़ेगा। चलें जी, दो दो हो गए, एक एक्सपोर्ट प्राइसेस से ले लिया, एक हमने वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से ले लिया। और बताएं, एक और हो जाए फायदा, एक और फायदा बताएं। ये मिटा रहा हूं मैं, वैरायटी चॉइस से कोई सर 12 मिनट्स में इतना ज्यादा हो जाएगा? करना पड़ेगा फिर, अगर पास होना है तो ए लेना है, वरना आप लिख दें मेरे से नहीं हो सकता। चलें आते हैं इस पे। अगर आपने इसी को डिटेल में कर दिया और बुलजाई हिट हो गया, वैसे एक और हमें सोचना चाहिए था। कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। क्या ख्याल है? चलें, ये भी हल्का फुल्का फ्यूल कर देगा, इसको लिंक करना है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से, इनकम इनइक्वालिटी से, और ये सारी प्राइसेस क्योंकि कम हो रही हैं तो इनकम इनइक्वालिटी भी हो सकता है कम हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए चीजें। हाँ जी, नहीं भाई, ये अगर ज्वाइन कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो फारिग हो जाएंगे। इंपोर्ट्स
आपकी और बढ़ जाएंगी, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और वर्सन हो जाएगा, आपकी करेंसी और डिप्रिशिएट हो जाएगी। वो लिख दिया ना हमने, पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करना है ना, सिनेरियो क्रिएट करना है, इसी को एनालिसिस कहते हैं। इफ लिखते हैं, समझ आई? इफ। अगली बात करें, डोमेस्टिक फर्म्स बंद हो जाएं, इंपोर्ट से डोमेस्टिक फर्म्स बंद हो जाएं, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा और बढ़ जाए, ये भी अच्छा है। टैरिफ्स जब आप हटाएंगे तो गवर्नमेंट पहले ही बजट डेफिसिट में, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गिरेगा, जिससे फर्दर पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि टैरिफ कम करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी तो गवर्नमेंट का गिरेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी सर बढ़ जाएगी। यस, चलें, डिपेंडेंसी भी है, डिपेंडेंसी भी है एक, लेकिन डिपेंडेंसी मेन बात ये है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, टेक्निकली इन्फ्लेशन कहीं पे भी नहीं थी जी। एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगी? भी हो सकती है। इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं था ऊपर, लेकिन हाँ चलें, एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा? ओवरऑल फायदा है नुकसान है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किस तरह की हैं। ठीक है, कंपेटिटिव है बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी कंट्रीज के रिलेटिव प्राइसेस पे डिपेंड करेगा, इनकी रिलेटिव प्राइसेस रिलेटिव क्वालिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक, चले कह ले, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिव प्राइसेस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की टाइप पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल ये ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ती है ये करने से या इंपोर्ट बढ़ जाती है ये करने से। ये तीन चीजें हैं जिस पे डिपेंड करेगा। आ जाए देखते हैं। That examines the benefits of free trade in achieving growth. Escape South Africa's. This will open up additional markets which may lead to export-led growth. एक नंबर, exports बढ़ जाएंगी, encouraging domestic businesses to be more competitive. Competition बढ़ जाएगा, lower prices हो जाएंगी, better products, therefore consumption बढ़ जाएगी, abroad भी FDI भी आ सकता है। Drawbacks क्या हैं जी? More or less हमने ये सारे कवर कर ही लिए। ड्रॉबैक्स क्या है? इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, डोमेस्टिक बिजनेसेस फेस इंक्रीज्ड कंपटीशन, पॉसिबल फॉल इन डिमांड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, अनएम्प्लॉयमेंट हमने लिख दिया, स्लो डाउन फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस में लीड टू फर्दर डेफिसिट, ये भी हमने लिख दिया। डेफिसिट लिखा था, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा था, और ये तो हमने लिखा ही था कि बाहर से अगर आनी शुरू होगी। और अब इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एज ऑलवेज। देखें उसका आंसर, नंबर कितने आए हैं उसके? एक साइड के 3 नंबर आए हैं, दूसरी साइड का 0 आया, इवैल्यूएशन में उसका फिर 0 आया। Closer membership will mean that South Africa will indulge in free trade. This will help it to achieve growth, as domestic firms will then be competing with foreign firms as there will be no trade barriers. This will push domestic firms to be more efficient, therefore increasing the output. Domestic firms may hire more workers in order to raise their output, making more job opportunities and helping to reduce South Africa's unemployment. Weak point. उसने उन्होंने ये अप्रोच ली है कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ये खुद इंसान बन जाएंगी फर्म्स और कंपीट करना शुरू कर देंगी, जबकि मोर ऑब्वियस चैनल था इसी को अप्रोच करने का। मेंबरशिप में आल्सो इनकरेज स्पेशलाइजेशन बाय, ये अच्छा पॉइंट है, जब भी फ्री ट्रेड होता है स्पेशलाइजेशन होती है। मोर एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज प्रेडिक्टेड, स्पेशलाइजेशन भी अच्छा है। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को इग्नोर कर रही है ना, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को इग्नोर कर रही है। However, membership may result in domestic firms, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ तो मेरा भी अपना दिल भी पिघल गया। मैं शायद दे देता, 1-2 तो दे ही देता, एक मैं दे देता। स्पेशलाइजेशन अच्छा पॉइंट है यार, लेकिन डिफिकल्टीज को उसने नहीं किया। गोरे का ये तो मसला है, मैं बता रहा हूँ। मेंबरशिप में रिजल्ट इन डोमेस्टिक फर्म्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एज देयर विल बी अनएबल टू compete, ये आया टिक।
unable to compete. This may also more cause more unemployment, as those employed will have no jobs. गोरे को ये भी पसंद आ गया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बात क्या है? बात वही है 2023 से पहले जब यूके के अपने एग्जामिनर्स थे तो वो लीवरेज देते थे, ये लीवरेज नहीं देते क्योंकि इनकी नौकरी है, इनका 12-13 लाख रुपया है 1.5 महीने का, ठीक है। बैठे बैठे 400 पेपर चेक करते हैं, मेरे ख्याल से 8 पाउंड है या 10 पाउंड है एक पेपर का, समझ आई बात की। तो वो लूज नहीं करना चाहते, इसीलिए वो इससे 1 इंच भी हिल नहीं रहे, 1 इंच भी नहीं राइट लेफ्ट हो रहे, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर moreover free trade will also mean that more inputs will be demanded as they will be cheaper and accessible without trade barriers. More imports, this may cause the current account deficit. फिर वही बात उसने लिखी जो कि मार्क्स स्कीम में थी, ये 100% लॉजिक बना रही थी ये बात में, लेकिन मसला क्या था, ये मार्क्स स्कीम में नहीं थी। तो समझे, ये गैम्बल है, गैम्बल। सर हाउ वुड वी नो कि क्या मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है क्या नहीं, जो मतलब ब्रेन में जो लॉजिक बन रही होगी हम तो पेपर में वही लिखेंगे ना। बस फिर उसी हिसाब से नंबर आ जाएंगे, यही तो इशू है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है मैं दे दूं शायद कहीं मेरा बी ना आ जाए। चलें जी, आ जाए। इवैल्यूएशन में क्या लिखा है? व्हेन इवैल्यूएटिंग फिर मेंबरशिप जी, इकोनॉमिक्स का थ्रेशोल्ड इतना लो है फिर भी लोगों का ए नहीं आता। चलो ये कौन है ये जो इस वक्त ये पूछ रहा है? जाहिर बात है नहीं आता, आपके सामने है, क्यों नहीं आता? पहली बात है कि बहुत ही वर्स्ट आंसर, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों के, मैंने कम से कम कोई 30-40 स्क्रिप्ट्स देख लिए हैं। माइक्रो के ग्राफ में इधर रियल जीडीपी लिख रहे हैं, इधर एवरेज प्राइस लेवल लिख रहे हैं, कुछ तो लाइक बच्चे इसको डिमांड लिख रहे हैं, इसको सब, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ तो ये इश्यूज हैं, कुछ बाकी इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, थ्रेशोल्ड लो होना इज अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। चलें बस, when evaluating if membership may help South Africa, it is less likely that the domestic firms will be able to compete with foreign firms due to problems like power cuts and lack of infrastructure. Moreover, imports are likely to increase during free trade as South Africa does not possess capital resources, increasing deficit. ये इसने अपनी तरफ से लिख दिया। दोनों सिनेरियोज बताने थे कि ये होगा तो ये होगा, ये सिचुएशन हुई तो ये हुआ। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो वाकई जीरो था। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रिलेटिव प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर नेचर एंड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसकी कंपेयर्ड विद उसकी क्वालिटी, ठीक है, इस तरह की बातें करनी थी। चलें जी, एक और हो जाए फिर। Assess the extent to which the policies suggested to improve infrastructure to reduce the high rates of unemployment in South Africa are likely to reduce income inequality. ज्यादातर ये पॉलिसीज क्या थी? सप्लाई साइड पॉलिसी। तो आप इस एंगल से अपने दिमाग को बनाएं, वही पैटर्न है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, ठीक है, और एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक। ये पहले देखते हैं ना वो है क्या। पहली तो थी, ये सारी वो हैं, ये सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, ठीक है, ये मोबिलिटी को बेहतर करेगा, प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेगा, रूरल एरियाज को भी टैप करेगा जहां ज्यादा पॉवर्टी होती है, तो इससे इनकम डिस्पैरिटी, एंड मेक श्योर एवरी पॉइंट रीचेज इनकम डिस्पैरिटी, इनकम इनइक्वालिटी तक पहुंचाना है कि वो बेहतर होगी। अगर आप जनरल बात कर देंगे तो अंडा आएगा पूरे उसमें, ठीक है। रेलेवेंस क्वेश्चन के साथ उसने कहा रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, डज नॉट केयर अबाउट एनी अदर इकोनॉमिक वेरिएबल। आप कहेंगे इकोनॉमी का सीन ऑन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, इनकम इनइक्वालिटी तक पहुंचाना है। हाँ ठीक है, एक ये हमने कर दिया इस पॉइंट का हमने एक बेनिफिट बता दिया और उसको इनकम डिस्पैरिटी का कह दिया कम हो जाएगी। अब आपका ये पॉइंट है कि फ्री ट्रेड होगा तो प्राइसेस गिर जाएंगी,
अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा और टैरिफ्स भी तो कम हो रहे हैं, ठीक है, टैरिफ्स भी कम हो रहे हैं तो इंपोर्ट सस्ती आएंगी, हो सकता है उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरे, फर्म्स सप्लाई बढ़ाएं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इससे भी सप्लाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम डिस्पैरिटी कम होगी, इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम डिस्पैरिटी कम होगी। और आखिरी क्या था, नेशनल मिनिमम वेज बढ़ाएंगे, वो तो डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, लोग इंकरेज होंगे ज्यादा आने के लिए, पैसे भी ज्यादा अर्न भी ज्यादा करेंगे, बेसिक नेसेसिटीज अपनी फुलफिल कर सकेंगे, तो इनकम डिस्पैरिटी कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेनिंग और एजुकेशन भी कर रहे हैं, तो उससे लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ज्यादा कमाएंगे। यस, अब आ जाए इन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ एक एक नेगेटिव, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, इस पे लगता है भाईजान टाइम, ठीक है, उसके लिए हो सकता है ये करने के लिए खर्चा और बढ़ जाए, टैक्सेस और बढ़ जाए, जिससे उल्टा इनकम डिस्पैरिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। फ्री ट्रेड में कुछ चीजें हो सकता है महंगी हो जाए, आई बात समझ में, शटडाउन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो हो सकता है इनकम डिस्पैरिटी, इसको सीधा अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक करें, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए जिससे इनकम डिस्पैरिटी हो सकता है बढ़ जाए, जब नौकरी नहीं होगी क्या करेंगे। इसके ऊपर क्या है, नेशनल मिनिमम वेज बढ़ाने से हो सकता है फिर भी लोग बाहर रहें, फर्म्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो फर्म्स फारिग करना शुरू कर दें आपको, तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। एक्सटेंट इवैल्यूएशन में मैं लिखूंगा टाइम पे डिपेंड करेगा, खर्चे कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ये पैसे ला कहां से रही है, कहीं टैक्सेस से तो नहीं ला रही, ठीक है। टाइम, ये सब कुछ जल्दी नहीं होगा, ये बहुत टाइम लेगा, तो इनकम इनक्वालिटी जल्दी कम नहीं होगी। ये 2 पॉइंट्स बहुत आ जाए, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लिंक, सेफगार्ड, सेटिंग अप्रोप्रिएट नेशनल मिनिमम वेज, ये पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये पॉलिसीज हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। इंक्रीजिंग मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एडवांटेज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्टिंग जॉब्स, वेज बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयबल, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही थी। कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मीनिंग such policies are possibly withdrawn, जल्दी वापस हो जाएगी। टाइम टेकन टू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज, रिसेप्टिवनेस ऑफ वर्कफोर्स, आप एजुकेशन देने के लिए आप कर भी दें, लोग नहीं पढ़ते फिर भी। If the policies simply have the impact of making people who are already earning higher incomes are even better off, the equally shared across all income will not reduce. हो सकता है इससे इंपोर्टर एक्सपोर्टर ही कमाए, फैक्ट्री वाले ही कमाए, गरीब वहीं कमाई रहे। इवैल्यूएशन में एज ऑलवेज कुछ भी नहीं लिखा, वहां अपने उस सैंपल आंसर को देखते हैं। सैंपल आंसर में 111 तो पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, आसान है मुश्किल है। सर आप इस पेपर का सेक्शन बी दिखा सकते हैं अगर आपके पास है? इसी पेपर का सेक्शन बी, जी ये लें। आप क्या स्क्रीनशॉट ले रही हैं? वैसे ऑफिशियली नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, हाँ। मुझे देखना है कि इफ शी गॉट सच हाई मार्क्स पर सेक्शन ए में उसके अच्छे खासे कटे हैं, तो दैट मींस कि उसका सेक्शन भी बहुत अच्छा होएगा। आप ये देख लें, 1 में से 1, 1 में से 1, 2 में से 2, 3, 4 में से 3, इधर 3, 3, फिर उसका इधर 8 आउट ऑफ 8 आया है क्वेश्चन 2 पार्ट ए में, और 12 ऑन 12 आया है 2 पार्ट बी में, 12 ऑन 12, फिर 5 आउट ऑफ 8 आया है, और फिर 10 आउट ऑफ 12 आया। टोटल मार्क्स उसके आए हैं 48, ये इसके रॉ मार्क्स थे, एडजस्टेड मार्क्स इसके आए हैं 44। क्या ख्याल है? आप भी हो सकते हैं ये, ठीक है, ये एलजीएस का स्टूडेंट है एक।